ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਦੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ,
फिर भी ये मनुख कहता है नहीं जी मैं बड़ा दुखी हाँ, कोई कहता मैं बड़ा सुखी हाँ, कहता मैं आ चीज़ का लाहा खटिया, कहता आ कुछ मैं गवा दिता है। सतगुरु कह लगे हौं विच गया, हौं विच खटिया, हौं विच गया, कहते सारे का सारा जिहड़ा है हौमे दे विच है। अज अगे सतगुरु जी गुरु नानक साहब महाराज जी बख्शिश करते हैं, कह लगे हौं विच सचियार कूड़ियार। सचियार का अर्थ है सच्चा मनुख बनना, शुभ गुणां दा धारनी होना, चंगा इंसान बनना। ये सब दे लई जरूरी है, क्योंकि हरेक धर्म ये गल कहता है तू इंसानियत नूं कमा। पर मनुख सियाणा बन के भी ये गल कहता है कि मैं सब तो ज़्यादा सियाणा हाँ। हाँ विच सचियार, सचियार बनना माड़ी गल ही, बड़ी चंगी गल है, सानूं बनना चाहिए। गुरु नानक साहब के अमृत बचनों के विच ते ये सिद्धांत मूल ही रहा है ना कि किवें सचियारा होई है कि कूड़ा टुटे पाल। मैं सचियार किवें हो सकता हाँ, किवें मेरा जीवन जिहड़ा इन्ना क पवित्र हो जाए, सच्चा सुच्चा हो जाए, मैं परमात्मा तक पहुँच जावां। सतगुरु कहते तू सचियार तो हो गया, पर सचियार दे पिछे भी हौमे जिहड़ी सी तेरी छुपी रही, उस सचियारतापन ने, उस हौमे ने तेनों परमात्मा तक ना पहुँचन दिता। अज तक बड़े देवी देवते होए, उन्हें सचियार नहीं सन की, उन्होंने पल्ले सचियारता सी, वो सच दे आधारित सन। पर एक अंदर हौमे जिहड़ी सी ये गल कहती सी कि मेरे तो वड्डा होर कोई नहीं। ब्रह्मा का जिक्र आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, कहन लगे ब्रह्मा ने एक बारी हंकार कर लिया, कहन लगा मैं वेदां दा ज्ञाता हाँ, मैं पृथ्वी नूं सृष्टि नूं रचन वाला रचैता हाँ, मेरे नाल दा होर कोई नहीं हैगा। परमात्मा ने खेड वरता दिती, जिहड़े 4 वेद सन चोरी हो गए, बड़ा पछताया, मना तू हंकार कर ले। उत्थे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर अमृत बाणी का बचन है, कह लगे ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया। कहते ब्रह्मा भी हंकार करके बैठ गया। मैं कल भी कहा सी हौमे पिछा नहीं साडा छड्डदी। ये इन्ना क ज़्यादा भयानक रोग है ना, मनुख मरते जाता है। इत्थे सतगुरु कह लगे हौं विच मूआ, ये मरते जाता है, पर मरण दे नाल भी इहदी अपनी हौमे जिहड़ी प्रबल है। सतगुरु कह लगे हौं विच सचियार कूड़ियार, कूड़ियार का अर्थ करांगे झूठ। जिहड़ा मनुख सच बोलदा है या सच्चे ते आधारित जीवन नूं जीवन का यतन करदा, उहदे अंदर भी हौमे है। जिहड़ा कूड़ दी जिंदगी जी रहा, सतगुरु कहंदे हौमे उहदे अंदर भी है। ये नहीं कि एक दे अंदर हौमे ते एक दे अंदर हौमे कोई नहीं हैगी, हौमे दोवां दे अंदर आ गई। जे झूठ बोलदा, जे चलाकी करदा है, अपने आप को बड़ा शातर जिहड़ा गिणदा, मास्टर माइंड गिणदा है, कहंदा मैं आ स्कीम लाई सी, ऐदां झूठ मारिया सी ते आ काम हो गया, उत्थे भी इहदी हौमे है। जे सियाणप दे विच हौमे है ना, तो जिहड़े झूठे लोग ने उन्हां दे अंदर भी उन्नी ही हौमे प्रबल है। अगे सतगुरु कह लगे हौं विच पाप पुन विचार, कहंदे बड़ा सियाणा बन गया, बड़ा ज्ञानी बन गया, विचार करदा है। कदी विचार करता कि आ कर्म पुण्य ने ते आ कर्म पाप ने। हुण ये जिहड़ी विचार करनी है, फिलोसफी घोटनी, ये तो विद्वानां दा कर्म है ना। सधारण मनुख नूं पता नहीं हो गए लगेगा कि ये किहड़ा कर्म पुण्य दा है ते किहड़ा कर्म पाप दा है। ये जिहड़े कोल नॉलेज है, जिहड़ा पढ़िया लिखिया, वो दस सकदा कि आ कर्म पुण्य है, आ कर्म पाप है। सतगुरु कहंदे ये पाप पुण्य दी विचार करदियां भी हौमे दे विच अपने आप नूं लई फिरदा है। पाप पुण्य का बड़ा तगड़ा कॉन्सैप्ट है। कई बार ये गल कह दी जाती जी पाप पुण्य है कोई नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी कहते नहीं पढ़िया, ये कहण की गल नहीं, पाप पुण्य हैगे ने, पापी पुन्नी आखण ना है। कह लगे कोई कह दे कि पाप पुण्य आखण का अर्थ अखान, कहते अखान थोड़ी है कोई, कर कर करना लिख लै जाहो। कहते ज्यों ज्यों मनुख कर्म करता है ना, वो अपने कर्मां दे नाल पुण्य ते पापां दा हिसाब किताब लिख के खड़दा है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ कि पाप ते पुण्य साडे ते असर करते हैं तो मनुख नूं वाचने चाहिए। बड़ी चंगी गल है कि आह कर्म जिहड़े ने मैनूं रब तक पहुँचा सकते हैं, आह कर्म मैनूं रब तो तोड़ सकते हैं। पाप ते पुण्य की विचार हो गई, सही ते गलत की विचार कर ली, आह कर्म मेरा सही है, आह कर्म जिहड़ा मेरा गलत है। सतगुरु कहंदे तू विचार ते कीती, उहदे अंदर भी हौमे है। हुण मनुख की करदा है, कहन लगा कि मैं पाप करन तो बच गया,
मैं विचार लिया आ कर्म पाप ने, बेशक तू पाप कर्म तो बच गया, पर अंदर हौमे आ गई है, हौमे तेनों फिर भी गांह वधन नहीं देगी जे तू पाप कर्म तो बच गया। ये गल कहता कि मैनू परमात्मा ने सबत बख्शी, उत्थे भी अपनी सियाणप घोड़दा है, जे पाप करन तो मैं बचया तो मैं जिहड़ा अपनी सियाणप चलाकी दे नाल बचया होया हां। जे कोई पुण्य करदा है उत्थे भी मनुख कहंदा पुण्य दे ते असीं बड़े ढंढोरे पिटदे हैं ना। मैं बड़ी बारी इस आसा दी वार च गल रिपीट हो रही है, पुण्य करके मनुख थां थां दे उत्ते ढंढोरा पिटदा, मैं शुभ कर्म कीता है, मैं पुण्य कीता है। सतगुरु कहन लगे ये वो भी हौमे दे विच है, मंदा मरण किनारे आ जाता है, पर जिहड़ी हौमे नहीं छे छड्डदा। जिहड़े पुण्य कर जाने ना, पाप तो असीं भुल जाने आ झाटी, मैं पाप किया मनुख भुल गया। पुण्य नहीं जे कदी भुलदा, पाप छेती भुलिया जाता है। मरदे दम तक जिहड़ा है ये गल कहंदा फिरदा है, कहंदा फलाने गुरुद्वारे दे विच मेरा पाठ कराओ, मैं इन्ना पैसा दिता सी गुरुद्वारे नूं, पुण्य कीता सी, दान कीता सी, भलिया पैसा दान कीते नूं कई साल हो गए, पर तूं अजे उस पुण्य दे विचों निकलिया कोई नहीं। सतगुरु कहंदे वो भी कर्म जिहड़ा तेरा वो हौमे बन के रह गई, हौं विच पाप पुण्य विचार। हुण जदों पाप पुण्य दी हौमे दे नाल विचार हो रही है, जे तू पाप करेगा तो याद रखी तू नरकां च जाएगा, जे तू पुण्य करेगा तो स्वर्गा च जाएगा। क्योंकि जे पुण्य करके हौमे नूं छड्ड दिंदा तू परमात्मा तक चलिया जाना सी, हौमे कोई नहीं छड्डी। हुण अगे सतगुरु कह लगे हौं विच नरक सुरग अवतार। अवतार का अर्थ हुंदा अवतरण, आउणा जाना लगा रहिंदा। कहंदे हुण ये कदी नरक च पैंदा है, कदी स्वर्ग दे विच पैंदा है, भाव कदी जमदा रहिंदा है, कदी मरदा रहिंदा, कदी शुभ कर्म कीते तो स्वर्गां दे विच चला गया, किसी वेले नीच कर्म करके बैठ गया, सतगुरु कह लगे नरकां दे विच चला गया। बस ये पाप पुण्य दी विचार करदा करदा सतगुरु कहंदे नरकां च चला गया, स्वर्गां च चला गया। नरकां स्वर्गां च जांदा होया भी अपनी हौमे नहीं छड्डदा, जे पुण्य करदा कहंदा मेरे वर्गा स्वर्गी कोई नहीं हैगा, मैं स्वर्गां दे विच पहुंचांगा। असीं ते बड़े बंदे नूं नहीं ना छड्डदे, घर का जी चढ़ाई कर जाता है, असीं उहदी भी फोटो के थल्ले लिखवा देने कि स्वर्गवास। ये ऐ लिखाया जाता जिवें बंदा टिकट करा के छड्ड के आया होए, भाई तू स्वर्गां च पहुँच गया। सतगुरु कह लगे तेरे स्वर्गां दे विच भी हौमे है, जे तू सारी उम्र पाप करदा रहे उत्थे भी हौमे कहंदा मैं नरकां च जाना, तू किहड़ी टिकट चुकी फिरदा है। भाई एक गल याद रखियो, ये परमात्मा दे हत्थ की खेड है, ये उहदा सिद्धांत है, उन्हें पता नहीं किनू बख्श देना है, किनू कित्थे चाढ़ देना है। ये बारे असीं कुछ नहीं कह सकते कि परमात्मा ने इदां करना तो इदां करना, मैं पापी हाँ जां मैं बड़ी बारी ये बेनती करदा हुंदा। ठीक है, मनुख नूं अपने औगण वेखने चाहिए ने, जिन्हों अपने औगण दिखण लग पे ना गुरु के घर दे विच आउंदिआं औगण वेखदा वेखदा एक गल जरूर मन दे विच पक्किया कर ले, जिस गुरु ने मैनू औगण विखा दिते वो औगणां नूं धो के ते अपने तक भी मिला लवेगा। पर सतगुरु कह लगे हौं विच नरक सुरग अवतार, कहंदे ये हौमे दे विच ही नरकां ते स्वर्गां दे विच पिया फिरदा, कदी नरक च चला गया कदी स्वर्ग च। 84 दा गेड़ इहदा इदां ही चलदा है, हौं विच हस्सै हौं विच रोवै। सतगुरु कहंदे ये कदी हौमे दे विच हसदा है, कदी हौमे दे विच रोंदा है। ते मैं ये कल भी बेनती कीती सी, याद रखियो अज मनुख दे दुख दा कारण वो आप खुद है। जदों असी अपना सुख ते दुख किसी मनुख दे कोलों लभांगे, किसी दे अधीन होवांगे, फिर वो मनुख सानू कदी दुखी करेगा ते सानू कदी सुखी करेगा। मनुख करदा की है, असी किसी न किसी दे अधीन होके तुरे रहने आ। जे एक मनुख माया दे अधीन है, उदाहरण लै लईए, माया आई सुखी हो गया, सुखी होया तो सतगुरु कहंदे हुण हसदा है, बड़ा खुश हुंदा है। हसदे होया की कहंदा, कहंदा कि इन्नी माया मेरे कोल आ गई है, मैं इन्नी धन संपता दा जिहड़ा वो मालक है। हौमे दे आ गई ना, हौं विच हस्सै। माया चली गई, कहन लगे रोन लग पिया, दुख आ गया, हौं विच रोवै, कहंदे रोंदा, कहंदे की होया, कहंदा मैनू घाटा पै गया। सतगुरु कहंदे तेरा हसना भी हौमे है, तेरा रोना भी जिहड़ा सी वो हौमे बन गया। तू हसदा, तू खुश रहिंदा, परमात्मा दे भाणे दे विच आण के टिक के खुश रहना सी।
पर तू फिर परमात्मा का भाना ना समझे, उहदे घर दा सिद्धांत दी तैनूं समझ कोई ना पई। सतगुरु कह लगे हौं विच हसै हौं विच रोवे, हौमे दे विच ही हसदा ते हौमे दे विच ही रोंदा है। हौं विच भरिए हौं विच धोवै। भरिए का अर्थ करांगे पापा नाल लद्दिया जांदा है। कहंदे ये मनुख कई बारी इन्ने क पाप करदा कि इहदा जीवन पापां दे नाल भरिया पिया, लद्दिया गया, सारी उम्र पाप करदा रहे। वो भी पाप भी जिहड़े ने वो भी हौमे दे विच ने। मनुख पाप करके भी ये गल कहिंदा कि मैं इन्ना तगड़ा पापी हाँ, आ अपराध मैं कीते ने। कई बारी मनुख दा तुसीं सुभाव वेखो, उहदी इन्नी क ज़्यादा भाषा विगड़ जाती है, वो डंके की चोट के नाल कहिंदा कि आ जिहड़े नीच कर्म कीते ने ये मैं कीते होए ने। सतगुरु कहिंदे अपने आप नूं भरदा पिया है, पापां दे नाल भरदा पिया, वो भी हौमे दे विच है। भलिया एक पासे तो तू पापां दे नाल लद्दिया है, एक पासे पापां दी हौमे करके बैठ गया, दो दो रोग कित्थों सांभेगा। अगे सतगुरु कह लगे जिहड़ा भरिया, जे किते गुरु ने समत बख्श दी कि भलिया हुण भरे होए पाप नूं धोला, सतगुरु कहिंदे ये फिर तीर्थां दे उत्ते जांदा है, धर्म दे कर्म करदा है, पापां नूं धोण दा यतन करदा है, पर धोंदिया धोंदिया भी जिहड़ा ये अंदर हौमे करी फिरदा है। पाप धोने माड़ी गल नहीं, बड़ी चंगी गल सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने इहदा बड़ा प्यारा जिक्र किया, मैं बड़ी बारी श्लोक साझा किया। कह लगे तीरथ बरत अर दान कर, ये पाप ही धोपण वास्ते सन ना। तीर्थां दे उत्ते रटन किया जाके, कदी इत्थे मत्था टेकिया, कदी इत्थे टेकिया, कदी किते इशनान किया, कदी किते इशनान किया। इशनान करके मत्था टेक के तीर्थां ते घुम फिर के आण के कहंदा मैं इन्नी वारी होया। सतगुरु कहंदे हौमे तो फिर तू नाल लैके आ गया, जिहड़ी हौमे तू छड्डनी सी वो तो तेरे नाल ही आ गई। तीर्थ करदा है, वर्त रखे जाते हैं, गुरमत ने वर्त नूं कोई प्रधानता नहीं दी, पर एक फलसफा सतगुरां ने दिता, ये धर्म का कर्म है। सारी दिहाड़ी भुखा रहा परमात्मा की याद दे विच, एक दिन भुखा रहा तो सारा साल जिन्ना चिर वो वर्त रिपीट ना होया, दोबारा ना आया, सारा साल जनाउंदा रहा कि मैं फलाना वर्त जिहड़ा सी वो रखिया सी देवी का जां देवते का। तीरथ बरत अर दान, दान पुण्य करदा जिहदा जिक्र आ चुका है। मन में धरै गुमान, मन च फिर हंकार करके बैठ गया, मेरे वर्गा नेमी कोई नहीं, मेरे वर्गा दानी कोई नहीं। सतगुरु कहंदे जिस तीरथ ने, जिस दान पुण्य ने तेरे अंदरों हौमे का बीज कढ़ना सी, तू उहदे नाल ही हौमे बना के तो जिहड़ी अपने जीवन नूं तबाह करके बैठ गया। इनू थोड़ी जी सौखी उदाहरण दे देना। परमात्मा ने सानू अंगूर दिते ने ना, संतरे दिते ने, गुड़ दिता है, ये बड़ियां चंगियां चीज़ां ने, असीं जे खाईए तो आराम मिलता है, शरीर नूं तंदुरुस्ती मिलती है। परमात्मा ने सारा कुछ दिता। हुण ये अपनी मत की वरतदा है, देखो ये अपने कर्म ही कई बारी पापां वाले हो जाते हैं। वो अंगूर ने, उही संतरे गुड़ पा के मट दे विच ते शराब कढ़ ली, चीज़ां ते ओह सी। अंगूर उदा खांदा तो इनू उन्हां दे विचों ताकत मिलती, संतरे खांदा, गुड़ खांदा तो शरीर नूं एनर्जी मिलती, ताकत मिलती, चंगियां चीज़ां सन। इन्हें मट दे विच पा के शराब कढ़ ली। इन्हें जिहड़ा चंगा, जितों फल चंगे फल तो कुछ चंगा जीवन च लैना सी, उस चीज़ की दुरवरतों के नाल जीवन बर्बाद हो गया। तीर्थ ते गया, वर्त रखे, नेम निभाए, बड़े बड़े दान पुण्य कीते, बड़ी औखियाइयां झलियां। तीर्थां ते जाना सौखा नहीं कोई, औखियाइयां झल के पलटा दूजे पासे मार दिता। कहना तो ये सी परमात्मा मेहर करी, कीती होई यात्रा सफल करी, पर कहंदा मैं इन्ना करके आ गया। सतगुरु कहंदे मन में धरे गुमान, भलिया मन च हंकार इकट्ठा करके आ गया। तेरा हाल तो उस हाथी वाला है, जिस हाथी ने अपनी सुंड दे नाल नदी दे विचों साफ पानी तन दे उत्ते पाया, तो बाद च उहिओ हाथी तन दे उत्ते चिक्कड़ सुट के अपने आप नूं मलीन कर लैंदा। इहो जिहे हाथी दे नहाउण दा की फायदा। सतगुरु कहने तेरे तीर्थां ते तेरे दान पुण्य करन दा, वर्त रखण दा की फायदा जे अपने आप नूं फिर मलीन करना सी। तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। कुंचर कहंदे ने हाथी नूं। सतगुरु इत्थे बख्शिश करदे ने, कहण लगे ये हौमे विच ही अपने आप नूं साफ करदा पिया, हौं विच धोवै। ये साडे सिख भी इस पासे नूं बड़े ने जी। ठीक है, मैं पिछले दिन एक बेनती की सी, इशनान जरूरी है। इशनान तो सब तो जरूरी परमात्मा का सिमरन, ओदी बंदगी है।
ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਪਿਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੀਜ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੀਜ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਕਦੀ ਉੱਗੇਗਾ? ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੀਜ ਉੱਗੇ ਨੇ? ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਪ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਟੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਭਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਸੀ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੁਬਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆ, ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਜਪ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਜਪ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕਾਦੀ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਤਾਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਪਣਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਜਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਜਪੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਮ ਜਪ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਪ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਪਰ ਜਪੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਪੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੈਮ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ? 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੇਗਾ।
15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਛਕਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਲਿਆ ਜੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੈਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੱਢੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੱਢ ਲਾ, 10 ਮਿੰਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਸਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜਪ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਜਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਲਟਰਾਂ ਪਟਰਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਬੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਈਆ, ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੋਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਖਵਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦਰਾਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਨਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਤੂ ਖੱਲਸ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਗੋਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋੜ ਕੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਧੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ, ਉਹ ਆਈਲਟਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਈਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ,
उत्थे भी मैं कोई नहीं छड्डदा। कोई काम अपना जुगाड़ ला के देसी स्कीम ला के कोई सिरे चाढ़ते स्कीम मारते सी, कहते बंदा बड़ा सियाणा, कहते मैं सियाणप वरती, उत्थे भी हौमे है। जे उही जुगाड़ फेल हो जाए, कहता मैंने चंगा भला बंदा बेवकूफ़ बना गया, मैं मूर्ख बन गया, सतगुरु कहते उत्थे भी तेरी हौमे है। किते तो हौमे छड्ड दे ना, तू जम्मन तो लैके मरण तक कोई पड़ाव नहीं छड्डिया जिहदे च हौमे ना होवे। हौं विच मूर्ख, हौं विच सियाणा, हौमे दे विच ही मूर्ख है, हौमे दे विच ही सियाणप है। ये सियाणप हुंदा होया भी ये हौमे नूं नहीं छड्डदा। सतगुरु कह लगे मोख मुकत की सार ना जाना। मोख दा अर्थ करांगे मोक्ष, मुक्त दा अर्थ करांगे मुक्ति। कहन लगे तू विकारां तो मुक्ति परमात्मा दे चरनां दे विच मोक्ष नूं प्राप्त ना कर सकिया। सार दा अर्थ है कदर, एक सार दा अर्थ दा संभालना, तू इहदे बारे समझ ना सकिया कि मोख की सी मुक्ति की सी। सारी उम्र हौमे दे विच ही कढ गया। जे मुक्ति वाले पासे नूं तुरिया उत्थे भी तेरी हौमे सी। असली परमात्मा दे सिद्धांत नूं तू समझ ना सकिया। सतगुरु कह लगे हौं विच माया, मुक्ति तक क्यों ना पहुँच सकिया, कहंदे तैनूं माया ने सारी उम्र नहीं छड्डिया। माया का अर्थ कल्ले पैसे नहीं, मैं बड़ी बारी अर्थ कीते, जिस पदार्थ दे विच रुचि हो के तुहानूं रब भुल जांदा है वो चीज़ माया है। जिस दे नाल जुड़ के तुहानूं रब चेते आउंदा है, याद रखिओ उहनूं माया अर्थ नहीं कर सकते। माया का अर्थ कल्ला पैसे नहीं, करंसी नहीं। माया का अर्थ जिन्हों वेख के रब भुलदा है, तुहानूं घर नूं वेख के, परिवार नूं वेख के, गड्डी नूं वेख के रब भुलदा, ये सारी माया है। जे तुहानूं परिवार दे विच बह के रब चेता आउंदा है तो याद रखिओ वो परमात्मा का ये हर का रूप है। हर रूप नदरी आया, ये परमात्मा का हरि का रूप बन जाएगा। सतगुरु कहन लगे भलिया हौं विच माया, हौं विच छाया। छाया का अर्थ होंदा शौरा, छां, जिवें रुख की छां हुंदी। कहंदे तू हौमे दे विच ही माया दे अधीन है, तो हौमे दे विच ही माया का प्रभाव तेरे ते पिया होया है। असी माया के प्रभाव तो निकलते नहीं, किसी न किसी रूप दे विच माया सानू आण के ठग ही लैंदी। सतगुरु कहते उत्थे भी तू हौमे दे विच ही तुरिया फिरदा है। हौमै कर कर जंत उपाया। सतगुरु कहन लगे भलिया असल दे विच ये परमात्मा ने पैदा कीती सी। हौमे तो ही परमात्मा ने जिहड़े ने कई जीवां दी पैदाइश, कईयां दी उत्पत्ति हुंदी है। जे साडी जीवन दी रौं चलदी है ना, ये भी हौमे दे विच ही चलदी पई है। हौमे तो मनुख बचदा नहीं। हौमै कर कर जंत उपाया, कहंदे जीवां दी पैदाइश जिहड़ी रब ने कीती ये हौमे दे कारण ही वधदी फुलदी। हौमै बूझै। सतगुरु कहंदे हौमे माड़ी नहीं कोई, ये एक खेड सी। इनू थोड़ा जिहा मैं समझा देवां। एक प्ले ग्राउंड है, जिन्ना चिर उहदे विच गेम नहीं कोई खेडी जाती उन्ना चिर उहदे च कोई रूल नहीं। तुसीं उहदे च सैर करो, तुरो फिरो, नचो भुड़को, जो मर्जी करो, कोई रूल नहीं ने। जिस वेले गेम शुरू हुई सारे रूल जिहड़े सी लागू हो गए। दो सके भरा ने, दोवां दियां वक्खो वक्ख जिहड़ियां टीमां बन गई, एक दूजे के विरुद्ध खेड रहे ने। हुण खेड के बाहर आए, रूल फिर खत्म। ये संसार जो परमात्मा ने बनाया उन्हें खेड बनाई है, तो जो खेड खेडी जाती है, याद रखियो खेड का भाव ही वो सी जिथे ना सुख होवे ना दुख होवे, हसदे हसदे खेड लिया जाए। अज जिहड़ियां साडीआं खेडां ने ना, ये खेडां नहीं, ये तो एक मतलब सानू समाजिक तौर के उत्ते ये वपारक पासे नूं खड़ सकदियां ने। कोई दो बंदे हार जाते, कह दिता जाता देश हार गया। दो बंदियां दे हारना देश किद्दां हार सकदा? खेड दे विच ना जित हुंदी है ना हार हुंदी। खेड सी जिहड़ी आपां बचपन दे विच खेडदे सां, लुकण मीची खेड ली, स्टापू खेड लिया, निकड़ सुकड़, होर कदी बैट बॉल खेड लिया। खेडदे खेडदे लड़ भी पैना, खेडदे खेडदे एक दूजे नूं हरा भी देना। जो खेड खत्म होनी फिर घूम फिर के इकट्ठे इक्को जिहे हो जाना। आह खेड सी जिहदे विच हासा सी, जिहदे विच खुशी सी। परमात्मा ने संसार भी एक खेड बनाया। इहदे च तू दुख पैदा कीते ने, तू सुख पैदा कीते ने। परमात्मा ने तो केवल आनंद पैदा किया होया सी। गां विचार आउणी है कि यह जग सच्चे की है, खोटड़ी सच्चे का विश्वास। सतगुरु कह लगे परमात्मा ने यह सारा कुछ पैदा किया होया सी। हुण हौमै बूझे, मैं जिहड़ी बेनती करना कहंदे हौमै माड़ी नहीं, बस हौमे का प्रभाव है। एक खेड, एक रूल ने ना जिहड़े तेरे ते चल रहे, तू इनू समझ ला। तां दर सूझे हौमे नूं समझण दी देर है, तैनूं परमात्मा दे घर दी गल दी समझ आ जाएगी। बस हौमे नहीं सानू ये गल समझण देंदी। इहदी विचार मैं इत्थों कल आरंभ कीती सी। मेरी जिन्ना चिर हस्ती कायम रहेगी उन्ना चिर तक, जिन्ना चिर मैं हाँ उन्ना चिर तक तू प्रगट नहीं हुंदा। जिस वेले तू प्रगट हो गया उस वेले मैं खत्म हो जाती है। मैं ये कल उदाहरण दिती सी, दो एक कमरे च एक चीज़ रहेगी, जां हनेरा रहेगा चाह चानन रहेगा। बत्ती बंद कर दिओ, दीवा बुझा दिओ, हनेरा है, दीवा जगा दिओ, चानन है। हनेरा तो चानन दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, बिल्कुल विरोधी ने।
जिथे तू रवेगा उत्थे मैं नहीं है, जिथे मैं उत्थे तू नहीं रहिंदी, जिथे मैं है उत्थे परमात्मा नहीं है, जिथे परमात्मा है उत्थे फिर मैं नहीं रहिंदी। मैं कल भी बचन साझा किया सी, जब हम होते तब तू नाही। पहला कहना सा मैं है, मेरी हस्ती है, परमात्मा कहता तू तो फिर रही जा, फिर मैं सा, मैं सुख दे विच सा, मैं दुख दे विच सा। ये चलो आप कल इनू जारी डिटेल ना वाचांगे, केवल तो केवल प्रमाण दे के समाप्ति करा। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही, मैं खत्म हो गई होना, मेरी हस्ती होगी, अब तू ही, मैं ना ही कहते हुण मेरी हस्ती खत्म। क्यों? क्योंकि तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू, तू दे विच अभेद होया, मैं चो खत्म हो जाता है। जो मैं खत्म हो गई, सतगुरु कहते तेनू रब दे घर दा दरवाजा लभ जाएगा। रब नू मिलना कोई दूर नहीं, औखा नहीं, सब तो सौखा जे किसी नू प्राप्त करना है वो परमात्मा नू है। जे सब तो औखा कोई चीज़ छड्डनी तो वह हौमे नू है। बस जिस वेले हौमे छड्ड के ना बुल्ले शाह नू किसी ने वे पुੱਛਿਆ ਸੀ, आह दिन चलते सन, वो पनीरी पुੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ। बुल्ले नू किसी ने पुछया, वो पनीरी पुੱਟ के लाई जाती है ना, इधरों पनीरी पुੱਟੀ फिर झोना लाता कद्दू दे विच। किसी ने कहा बुल्लिया तू रब दे घर दीयां गल्लां करदा, रब नू किवें प्राप्त किया जाता है? उन्हें एक एक जड़ी सी लाइन च गल मुका दी। कहंदा बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पुੱਟਣਾ ते इधर लाउणा। कहंदा बस आ मैं मेरी चो मन पुੱਟ के तू वाले पासे ला ला, रब दा कोई औखा नहीं। बस औखा इहो काम है कि वह पनीरी साडे कोल पुੱਟੀ नहीं जाती, लाउण दा काम नहीं औखा हुंदा। सो सतगुरु इत्थे कह लगे हौमै बुझै, हौमे नूं बुझ तां दर सूझै, तू परमात्मा के घर नूं समझ लवेंगा। ज्ञान भी होना, जिन्ना चिर तैनूं रूहानीयत का ज्ञान नहीं ना हुंदा, जिन्ना चिर सच का ज्ञान नहीं हुंदा, कथ कथ लूझै, तू जिन्ना मर्जी अपना अखरी ज्ञान घोटी जा, तू अंदरों अंदर खिजदा जाएगा, अंदरों अंदर जिहड़ा झिझकदा जाएगा, अंदरों अंदर जिहड़ा वो कल्पदा जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पैना। अज इहो कारण है कि ज्ञान भी होना गावे गीत, रूहानीयत का ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के नाल असीं कल्पे पे हाँ, आ नहीं हुंदा, आ नहीं हुंदा, वो तां नहीं हुंदा, वो मैं करना चाहुंदा। जिस दिन रूहानीयत का ज्ञान पैदा हो गया उस दिन मैं मर जानी है, मसले सारे हल हो जाने ने। सतगुरां दा एक पावर बचन है, कहन लगे जब मेरी मेरी करे, कहते जो ये मेरी मेरी करदा तब लग एक काज नहीं सरै। कहते जो कहंदा मैं कीता मेरा मेरा, उदों कोई काम नहीं होना। जब मेरी मिट जाए, जो मेरी मिट गई, कहते तब रब काज सवारे आए। परमात्मा आप काम सवारना आउंदा, चल तेरा मैं काम कर देना, बस मैं नूं मारना ही औखा है। पर मैं सोचदा ना ये रब की खेड बड़ी अंतर एक हैगी कसूती जी। जिदन मैं ही मर गई फिर लोड़ भी की किस चीज़ की, है ना? मसला तो इसे चीज़ मैनू गड्डी चाहिए, जिदन मैं ही मर गई फिर गड्डी का चार पाउणा आपां। ये परमात्मा की खेड ही इदां दी परमात्मा ने बनाई, बंदा बस इस घुम्मण घेरी दे विच पिया रहिंदा है। इहनूं समझण वाली गल है। सतगुरु कहंदे जे तू समझ गया तो तू रब तक पहुँच गया, ना समझिया ज्ञान भी होना। ज्ञान तो सकना कथ कथ लूचै, नानक हुक्मी लिखी है लेख। सतगुरु कहते जीव भी की कर सकता है, परमात्मा के हुक्म के अनुसार ये भागां दे कर्मां दे लेख लिखे जाते हैं। जिहा वेखै उन्हां कर्मां मुताबक जिद्दां ये वेखदा है, तेहा वेख ओहो जिहा ही इनू नज़र आउंदा है। कर्मां च चंगा लिखिया तो चंगा वेखदा है, जिंदगी चंगी है। कर्मां च माड़ा लिखिया तो माड़ा वेखदा है, तो जिंदगी माड़ी हो जाती है। मैं समाप्ति करा, याद रखियो तुसीं लख यतन कर लो, हुंदा वो है जो परमात्मा नूं पाउंदा। सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। असी अपने बड़े हथ पैर मारते हैं। फिर इत्थे मन च एक सवाल आवेगा, जे रब ने जो करना सी उही होना, तो मैं गुरु घर इन्ना आया, इन्नी सेवा की, ये क्यों? ये रब ने ही लिखिया सी तू आना है, होर कोई गल नहीं सी असल। बस इनू समझण दी गल। आपां इस गल नूं कल नूं वाचांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। पहले श्लोक की यह विचार सी, समुच्चा इहदा पहले श्लोक का तत्त भाव यह है, भलिया तू हौमे नूं छड्ड देगा तैनूं रब की प्राप्ति है। कल हौमे का रोग किदां दा, ये गुरु अंगद देव महाराज जी की रसना तो आपां सरवण करांगे। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। ज्ञा ए हौमै बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै, नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की